Hello everyone. As you know, we are doing model series, and I told you last time I'll bring for you should. So let's begin. So should has two features, two main features I would say. One is suggestion, and the other one is imaginary obligation. Should have plus V3. Now suggestion में आप देख सकते हैं you should go to office by walk. So हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं. सो शुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया गो, एंड दैट मीन्स आपको ऑफिस चल के जाना चाहिए. नाउ इमेजिनरी ऑब्लिगेशन में डिफरेंस क्या है? शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. यू शुड हैव स्लेप्ट इन टाइम. स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है. सो इसका मतलब हो जाएगा आपको समय पे सो जाना चाहिए था. सो द डिफरेंस इज, अगर मैं कहता हूँ यू शुड स्लीप इन टाइम, आपको टाइम पे सोना चाहिए. You should have slept in time, आपको टाइम पे सोना चाहिए था. That is the difference, and it's very very common and very very commonly required in daily life. So let's look at each of these features in detail, because as I always say, we do not need only the positive sentence, we need all 6 variants. For example, positive, negative, yes, no. So we have all these sentences in Hindi on the right hand side. So let's begin. You should go to office by walk. Positive है, आपको ऑफिस चल के जाना चाहिए. You should not go to office by walk. Negative, आपको ऑफिस चल के नहीं जाना चाहिए. Should you go to office by walk? क्या आपको ऑफिस चल के जाना चाहिए? यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं, राइट? इट्स अ क्वेश्चन. Should you not go to office by walk? क्या आपको ऑफिस चल के नहीं जाना चाहिए? It's very very common, right? So basically when we say sentences like these, we are saying should you not go to office by walk. Maybe हम कहना चाहते हैं कि इतना क्लोज आपका ऑफिस है तो क्या आपको चल के नहीं जाना चाहिए, राइट? बेटर नहीं रहेगा. So most of the times when we say yes no negative questions, we indirectly imply that thing should happen. ऐसा होना चाहिए. Should you not go to office by walk? Should you not help me in this task? Should you not call me regularly, right? In other words, you are saying you should do all these things 80% of the times, that means. But 20% of the times ये भी हो सकता है कि genuinely वो एक question हो, but then as per my experience, it stays up to 80% of the times we say that in indirect way. So next is WH. Why should you go to office by walk? आपको ऑफिस चल के क्यों जाना चाहिए, right? It's a WH question. Next is why should you not go to office by walk? तो अब ऐसा कब बोलेंगे हम? आपको ऑफिस चल के क्यों नहीं जाना चाहिए? Don't you want to probably burn down some calories? So आपको ऑफिस चल के क्यों नहीं जाना चाहिए? It's quite close maybe. Okay, so reason क्या है कि आप नहीं जाना चाहते हैं? So that is suggestion and the 6 variants. Next is डेली लाइफ एग्जांपल्स. कुछ मैंने दिए हैं इसके, ये 1 2 3 तीनों सेपरेट एग्जांपल्स हैं. एंड देन 1 का अगर हम देखें, यू शुड स्पीक टू हिम, आपको उससे बात करनी चाहिए. यू शुड नॉट स्पीक टू हिम, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए. शुड यू स्पीक टू हिम, क्या आपको उससे बात करनी चाहिए. शुड यू नॉट स्पीक टू हिम, क्या आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए. ओके, मे बी यू कैन से कि आपकी ज़रूरत है, यू नीड हिम, सो शुड यू नॉट टॉक टू हिम. इन दिस सेंस these sentences are used. Why should you not speak to him? आपको उससे बात, why should you speak to him? आपको उससे क्यों बात करनी चाहिए, right? Maybe sometimes people say in ego, right? गलती उसकी है तो आपको क्यों बात करनी चाहिए. Why should you not speak to him? Now, when would you say this? आपको उससे बात क्यों नहीं करनी चाहिए, right? Because एक critical misunderstanding है. So why should you not speak to him? आपको उससे बात क्यों नहीं करनी चाहिए. So in this sense, we often use these sentences, and as I said many times, up to 80% of the times we are implying कि ये action होना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, right? So second example है, third example है, you can look at this later and let's move forward. Second जो feature है, I'm very sorry the screen is not complete, but I think we should be fine with this. इमेजिनरी ऑब्लिगेशन है, शुड हैव प्लस V3 है, एंड देन जैसा कि मैंने बताया था, इसका मतलब है कि ये एक्शन होना चाहिए था. ओके, यू शुड हैव स्लेप्ट बिफोर 10 PM एग्जांपल है, तो आपको 10 बजे से पहले सोना चाहिए था. अब हम इसके वेरिएंट्स देखते हैं.
आई अगेन अपोलोजाइज, ये विंडो थोड़ी कटी हुई है, बट आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड. शुड लिखा है, वाई लिखा है, और ऊपर वाले सेंटेंस में यू लिखा है. तो यू शुड हैव स्लेप्ट बिफोर 10, ये पॉजिटिव है, हिंदी में भी दिया है. आपको 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए था. रिमेंबर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यू शुड स्लीप बिफोर 10. उसका मतलब हो जाएगा कि आपको 10 बजे से पहले सोना चाहिए. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की. आपको 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए था. नेक्स्ट है नेगेटिव, यू शुड नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर 10. आपको 10 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए था. राइट, मे बी बिकॉज यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तो आप 10 बजे से पहले कैसे सो सकते थे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, शुड यू हैव स्लेप्ट बिफोर 10. अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आपको 10 बजे से पहले सोना चाहिए था. एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव, यस नो. शुड यू नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर 10. क्या आपको 10 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए था. राइट, मे बी यू हैड such an important exam, you had to get up at 4, so should you not have slept before 10 p.m. नेक्स्ट है WH, why should you have slept before 10. क्यों सोना चाहिए था 10 बजे से पहले. राइट, ये क्वेश्चनिंग है डायरेक्टली. नेक्स्ट है WH नेगेटिव, why should you not have slept before 10. क्यों नहीं सोना चाहिए था आपको 10 बजे से पहले. अगेन राइट, मे बी यू हैड टू बोर्ड अ फ्लाइट एट 3 in the morning, so why should you not have slept before 10 p.m. क्यों नहीं सोना चाहिए था. Okay, and as I have said just 2 minutes back, many times we are implying that ये action होना चाहिए था. तो हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए था. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके भी. ही शुड हैव ईटन वेल, उसे ठीक से खाना चाहिए था, बहुत कॉमन है. हम बोलते हैं अक्सर ही शुड हैव यूज्ड हॉर्न, उसे हॉर्न बजाना चाहिए था. यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड है. ही शुड हैव आस्क्ड फॉर डिस्काउंट, वी शुड हैव प्लेड 2 more मैचेस, 2 और मैच खेलने चाहिए थे. आई शुड हैव रिटर्न होम ऑन टाइम, टाइम पे आना चाहिए था. पॉइंट टू नोट, ये मैंने पहले भी एक बार कवर किया है, लेट मी डू दैट अगेन. शुड इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ शुड नॉट. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. देयर इजंट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, बट द ओनली थिंग इज शुड नॉट पहली बात फॉर्मल इंग्लिश है, शुड इज इनफॉर्मल. आई वुड सजेस्ट फॉर्मल इंग्लिश यूज़ कीजिए, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इंग्लिश. तो डिफरेंस क्या है, अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं यानी कि शुड, तो सब्जेक्ट हमारा बाद में चला जाता है. शुड के बाद हमने देखा है क्या लिखा है, ही. राइट, लेकिन अगर हम फुल फॉर्म यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट बीच में आ जाता है. शुड ही नॉट कम टू ऑफिस टुडे. क्या उसे आज ऑफिस नहीं आना चाहिए. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट इन्फो. यू कैन कॉन्टैक्ट मी, Facebook, Instagram, as per your liking. Thank you for watching this video, and please like, comment or subscribe. And I think this should be most likely my last video in 2020, so I wish you a very happy new year in advance. Stay positive, stay healthy, and maintain a positive outlook towards life. I can share you from my experience, because if you're not keeping happy, if you're not taking care of yourself, then English or all other things will suffer along with you. So that is so the much more important thing what I'm trying to say in life is to be happy. So thank you guys, and very soon I'll come with the next video. Bye bye for now.